Good morning students, welcome to our YouTube channel. In this video I am going to explain the answers of exercise of this chapter number 2, that is the Indian Parliament of the class 8 standard. The first question is choose the correct option and rewrite the statements. First, a candidate to the Lok Sabha are elected through. We as you know in a earlier part of this video, the part first में मैं आपको इस वीडियो को जहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो का करा हूँ उसमें इन दैट वीडियो आई हैव नाइसली एक्सप्लेन अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट, द what is Indian Parliament and the two houses having the Indian Parliament, that is the Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha member directly elected from the territorial constituencies while the Rajya Sabha member indirectly elected from the states. They are directly elected by the MLAs of the states, right? So answer is territorial constituencies, yani ke for example our Maharashtra has given the 48 seats in the Lok Sabha, so one seat having that one territorial constituency. Answer is A. Next question, India's Judge is the ex officio chairman of the Rajya Sabha, vice president. जैसे लोकसभा का हेड जो रहता है स्पीकर होता है, तो राज्यसभा का हेड वाइस प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन को वाइस, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है एट प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट इज वेंकैया नायडू, है ना, तो ये है उनके चेयरमैन राज्यसभा के. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंड राइट. मेंबर्स ऑफ द लोक सभा एंड राज्य सभा आर नोन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. मैंने वीडियो में बताया था, जबकि स्टेट के 5वें चैप्टर, हमारा जो 5th चैप्टर है स्टेट गवर्नमेंट, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इज नोन एज MLAs. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग लॉज विद द लेजिस्लेचर. थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ रीजंस. राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस. राज्यसभा परमानेंट हाउस क्यों है? बिकॉज राज्यसभा नेवर डिसॉल्व कंप्लीटली, हेंस इट इज कॉल्ड द परमानेंट हाउस. एंड 1/3 मेंबर्स ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा, यानी कि फॉर एग्जांपल राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने हैं? 250. तो 250 का 1/3, तो 1/3 ऑफ द 250 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इज 84. सो 84 मेंबर्स हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं, उतने ही मेंबरों का इलेक्शन होता है, राइट? So that's why, and the tenure of the each member have completed the tenure of 6 years and 6 years retire, and after every 2 years an equal number of new member get elected. तो हर एक मेंबर, राज्यसभा का मेंबर 6 सालों के लिए नियुक्त होता है, जबकि लोकसभा के मेंबर 5 साल के लिए. और लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट हाउस. इवन द अगर डिजोल्व कभी 1 साल में भी डिजोल्व हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे राज्यों में स्टेट असेंबली 1-2 साल में डिजोल्व हो जाती है. Next question, Lok Sabha is known as the first house. Lok Sabha is a lower house and first house of Parliament of India, and Lok Sabha is the house of representatives directly elected by the people, है ना. जबकि राज्यसभा के मेंबर do not directly elected by the people, they are elected by the state MLAs, and state MLAs directly elected by the people. So we can say Rajya Sabha member indirectly elected by the people, while the Lok Sabha member directly elected by the people. Hence the Lok Sabha is called the first house, and the member of the Lok Sabha are elected directly by the people from the territorial constituencies. So this is the one of the ad. You can consider this Abbas Academy our YouTube channel. अगर अभी तक के आपने चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस अ बेल आइकॉन, because we are providing free of cost authentic and awesome videos made on the class 8 videos made on math, science, history and geography. Next question, answer the following 25 to 30 words. How are the members of the Lok Sabha elected? The members of the Lok Sabha are elected directly by the people from territorial constituencies. यहाँ पर territorial constituencies के मीनिंग क्या है? यानी कि territorial से मतलब है, मीनिंग है इलाका, रीजन. द वन ऑफ द फॉर एग्जांपल आपको इजी समझाने के लिए, हमारे महाराष्ट्र में लोकसभा की टोटल 48 सीट्स है, राइट? जबकि असेंबली की, हमारे स्टेट गवर्नमेंट की जो टोटल सीट्स है, नहीं टोटल हमारे इधर 48 MLAs हमारे महाराष्ट्र से चुने जाएंगे, लेकिन 288 MLAs रहेंगे. सो आपको समझने के लिए बता दूं कि 6 असेंबली सीट बराबर रहती है एक पार्लियामेंट्री सीट की, एक लोकसभा सीट की. समझ में आया? दैट्स वाई, एंड पार्लियामेंट्री और लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, वो बहुत ही बड़ी होती है.
इट कंसिस्ट नियर मोर देन 18 to 20 लाख वोटर्स, 18 से 20 लाख वोटर्स रहते हैं एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, जबकि एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ 2.5 लाख वोटर रहेंगे, 2 से 2.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, and how the members of the Lok Sabha elected? They are elected by the people directly, and this election take place after every 5 years, and this election is known as general elections. Next question, explain the function of the Speaker of the Lok Sabha. Speaker control the business in the House in an unbiased manner, and Lok Sabha members have some rights and privilege as the representative of the people. So, and Lok's Speaker has to maintain the decorum and dignity of the House as well as interpret the rules of daily functioning of the House. So these are the function of the Speaker. Actually the Speaker maintain the discipline in the House. आपने देखा होगा कि लोकसभा एक चैनल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डिश टीवी पर या फ्री ऑफ कॉस्ट डिश टीवी पर या वीडियोकॉन वगैरह डिश टीवी पर केबल नेटवर्क पे भी बताया जाता है। यू कैन सी द प्रोसीडिंग्स। उसमें कई बार ऐसा होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट झगड़ा करती है, तो उनको रोकने के लिए, उनको सही तरीके से चलाने के लिए स्पीकर कंट्रोल करता है। स्पीकर जो पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। सो कोई भी बिल, सबसे पहले अगर कोई मंत्री, अगर गवर्नमेंट चाहती है, जैसे फॉर एग्जांपल मोदी गवर्नमेंट अगर कोई बिल को, अगर कोई कानून बनाना चाहती है तो दे विल इंट्रोड्यूस दैट बिल इन द पार्लियामेंट। अब ये बिल क्या होता है? बिल दैट इज क्या कौन सा लॉ बनाना चाहते हैं वो एक पेपर पे लिख के पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं। पार्लियामेंट यानी कि पहले एक हाउस यानी लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, राइट। तो लोकसभा में तीन प्रोसेस है। फर्स्ट रीडिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल बाय द मिनिस्टर, सेकंड रीडिंग में डिस्कशन वगैरह होता है, एंड थर्ड रीडिंग में फाइनली वोटिंग होती है। एंड आफ्टर वोटिंग दैट बिल, इफ दैट बिल इज पास बाय मेजोरिटी, देन द बिल गेट द सपोर्ट फ्रॉम द मेजोरिटी मेंबर, एंड मेजोरिटी मेंबर ने कहा कि हाँ हम सपोर्ट करते हैं बिल को, यस, तो वो बिल पास हो जाएगा एक हाउस से, फिर दूसरे हाउस में भी जाएगा और वहीं पर सेम प्रोसेस होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रीडिंग, और दूसरे हाउस ने भी पास कर लिया तो ये प्रेसिडेंट के टेबल पे जाएगा और प्रेसिडेंट ने साइन कर दी तो द बिल बिकम अ लॉ ऑफ इंडिया। So I hope you like this video. So don't forget to share this video to more and more students. So more and more students will be benefited during this lockdown period.